Dear students, welcome back in the 8th class chapter of Geography, Minerals and Power Resources. Today we are going to discuss the topic non-conventional resources of energy. Non-conventional resources of energy. What are non-conventional energy resources? Which are naturally replenished, such as sunlight, wind, tides, geothermal heat, and biomass. Non-conventional resources of energy are naturally replenished, such as sunlight, wind, tides, geothermal heat, and biomass. Moreover, they are safe, clean, and easy to maintain. And in this field, many technological advances has been made. So, in this way, we have seen that non-conventional resources of energy are renewed and renewable, and many technological advancement has been made in this field. See first example of that, geothermal energy. What is geothermal energy? There is a vast reservoir of heat trapped inside the earth interior. पृथ्वी के अंदर बहुत सी गर्मी पाई जाती है. It often comes forth on the earth's surface in the form of geysers and hot springs. ये पृथ्वी के बाहर हॉट स्प्रिंग्स के रूप में बाहर आती है. हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? वार्म और हॉट वाटर गशिंग आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के अंदर से जब गर्म पानी बाहर निकलता है, दैट इज द फॉर्म ऑफ द हॉट स्प्रिंग. एंड वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ दैट. फर्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ पूगा वैली ऑफ लद्दाख इन कश्मीर, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज मणिकर्णम near Manali in Himachal. There are two examples of hot spring, Puga Valley of Ladakh, and second is Manikarnam in the Himachal Pradesh. The countries like the USA, the Philippines, Indonesia, Mexico, Italy, New Zealand, and Iceland are use advanced technology to explore this potential energy. These are the countries who are using this potential energy. Next one is solar energy, Surya Urja. Sunlight is the most abundant, infinite source of energy, which is actually the source of all other types of energy found on the earth. It can be better utilized in countries that lie between 30 degree north and 30 degree south latitudes. सनलाइट जो है abundant मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाती है. Actually, it is a source of all other types of energy found on the earth. And it can be better utilized in countries that lie between 30 degree north and 30 degree south latitudes. 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये बेटर यूटिलाइज की जा सकती है. Photovoltaic cells are fixed on solar panels which are exposed to sunlight. सनलाइट के लिए फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं सोलर पैनल में फिक्स किए जाते हैं, जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज़ देन यूज फॉर लाइटिंग, हीटिंग एंड कुकिंग पर्पसेस. फिर हम इसको जो है लाइटिंग, हीटिंग और कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. एट प्रेजेंट देर आर 10 सोलर पार्क्स. इस समय जो है 10 सोलर पार्क्स हैं दैट आर प्रपोज्ड इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना एंड कर्नाटका. नेक्स्ट वन इज wind energy. Wind was used for grinding grains and pumping water in ancient times. प्राचीन समय में हवा का, पवन का जो है प्रयोग
ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और वाटर पंप की करने का यूज़ किया जाता था। नाउ डेज आजकल विंड पावर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो है प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द विंड मिल्स। कोस्टल एरियाज, फ्लैटेंड हिल टॉप्स और प्लेन्स आर चूजन फॉर कंस्ट्रक्टिंग सच विंड मिल्स। विंड मिल्स की स्थापना के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मोस्टली जो है कोस्टल एरियाज एंड फ्लैटेंड हिल टॉप्स या प्लेन्स मैदानों को चुना जाता है। चाइना, जर्मनी एंड यूएसए प्रोड्यूस 64.7% ऑफ द टोटल एनर्जी फ्रॉम द विंड एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो 64.7% ऑफ टोटल एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग बाय द चाइना, जर्मनी एंड यूएसए। एंड द अदर कंट्रीज दैट यूज विंड पावर आर कनाडा, स्पेन एंड यूके एंड इंडिया। In India, coastal parts of Karnataka, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep have great potential for tapping wind energy. इंडिया के अंदर कोस्टल प्लेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, इसमें जो है विंड एनर्जी को ट्रैप करने का ग्रेट पोटेंशियल है। नेक्स्ट वन इज टाइडल एनर्जी। This large source of energy can be harnessed by building tidal dams across estuaries. Tidal energy is being used extensively in South Korea, Canada, and France. Extensive plans for tidal barrages exist in China, the Netherlands, India, Norway, the UK, the Philippines, and Russia. Tidal energy ज्वारीय ऊर्जा, ये एनर्जी का सोर्स है जिसमें हम एस्ट्रीज के आसपास नदियों के ऊपर जो है टाइडल डैम्स बना देते हैं और इसके द्वारा जो है हम एनर्जी हार्नेस इकट्ठी करते हैं। और टाइडल एनर्जी जो है साउथ कोरिया में एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है, कनाडा और फ्रांस में भी। और इसके लिए जो है प्लान्स बनाए जा रहे हैं चाइना, नीदरलैंड्स, इंडिया, नॉर्वे, यूके और फिलीपींस एंड रशिया में। इन इंडिया गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात एंड द सुंदरबंस। इंडिया के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात एंड सुंदरबंस आर आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल एरियाज। उसको आइडेंटिफाई किया गया ऐसे पोटेंशियल एरियाज के रूप में फॉर द टाइडल एनर्जी। गुजरात हैज़ इंस्टॉल्ड एशियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल टाइडल करंट पावर प्लांट। गुजरात के अंदर सबसे पहला कमर्शियल स्केल टाइडल करंट पावर प्लांट लगाया गया है। सो दीज आर द नॉन कन्वेंशनल sources of energy, that is geothermal, wind, tidal. In the next video we will come to know about the conservation of power and energy. Thank you.